Just let me know when the lighting is fine until Yeah, it's all Insta is taking some it's all time good. to No, everything's send out the good. notification to everyone. Okay. Yep. All right. So welcome everybody, whoever is joining. Hi Tripti. Hi Devrat. Hi Nitika. Nitika. Yes, Right. Nitika. I'm sorry. When we are on live, right? You know that everyone's name is very small. That's why I had trouble Yeah. reading Right. it. Thank you so Right. much, everybody, for joining, whoever are joining live. And Meda, very warm welcome once again. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure. It's a pleasure always. Yeah, and it's always so nice to talk to you about certain topics which are, which most of us experience at some other Mhm. point in time, and we have somebody who actually looks at those problems from the mindset perspective and not the way each one of us experience it. And most of the time, we do not get even the opportunity to talk to somebody who is expert on that. It is more of that, whatever way we have seen our parents dealing those things, we probably deal the same way. Or Right. at most we find a friend or somebody who we feel is so-called, wise, and just go and speak to that person. Uh, Right. So with that note, shall we get mhm. started? Sure, sure. Absolutely, absolutely. It's 12:02. Let's get started. Yeah, sure. So, So, thanks again to everybody, whoever has joined in, and I would request, if possible, stay back. I know it is Sunday afternoon and it's not something which you want to do for another 25-30 minutes, but if you hang around, I promise you will be walking away at least a couple of tips which will definitely be helpful for you to, take your journey from burnout to balance, or let's see how the discussion goes. Okay. So, right. Meta, what do you think are the common signs which you felt you have observed, right? When somebody says, okay, I'm burning out and it's getting too much or something. Mhm. So, for me, burnout is basically, feeling a sense of exhaustion and feeling a sense of lack of energy throughout the day. Because in the long run, तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट डेली लाइफ में अगर हम बर्नआउट फील कर रहे हैं, मतलब एनर्जी नहीं है कुछ काम करने की, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, फिर कुछ कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट आई फील बर्नआउट इज. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट Right. डू यू थिंक ऑफ बर्नआउट एज? Yeah, I mean, burnout could be externally or internally. Internally, when I say, that means everything is fine, मुझे बहुत सारा काम नहीं है, but still I'm so drained and stressed out and maybe tired all the time. That is something which is राइट. mentally or emotionally I am exhausted. And एग्जॉस्टेड, एग्जैक्टली. हाँ. when I look at the literal meaning of burnout, it is more of, for me personally, it is like a physical burnout, as in I am doing my best, I'm trying to be Durga Ma and doing 9 things at a time, and and doing Yeah, all and that I'm so physically tired out of that. Yeah, yeah. exactly. I get physically tired and I feel that, oh my God, when I go to bed in the night, I feel I would have taken some time out for rest, or I would have, done that favorite thing which I wanted to do, maybe watching my favorite thing, but I can't do just because my paas time nahi hai. Mm-hmm. Right, right, absolutely. And you pointed out very nicely, that there is physical workout, there is external workout and internal. And I think we need to address both of the things very separately. Mm-hmm. Right? Yes, certainly, Yeah. certainly. And see, Oh, when we I thought talk my about, video was stuck. Can you hear yes, me? for a few seconds it was. Okay, okay, okay. Cool, Can cool, cool. you hear me well now? Yeah, I can hear you. Okay. So, when we say this mental and emotional burnout, I think that's a very deep topic, and probably we might have a separate session on Absolutely. understanding that. But let us just Yeah. briefly touch upon it, and then we'll try to talk about what are the physical signs of burnout and what best we can do, or maybe the practical tips which people who have joined us can walk away with, right? So, Right, right. for mental and emotional burnout, I personally feel that when we have that sense of not being enough, हाँ. right? और maybe we always feel that okay, मतलब मुझे दूसरों से कोई एक चीज एक्सपेक्टेशन है या मुझे कुछ उनसे चाहिए, और I want them to treat me in a certain way and they are not treating, और मुझे ऐसा फील हो कि मेरी जरूरत ही नहीं है. हाँ. There is a word for it, what I call as absenteeism. तो मतलब हम Yes. कुछ काम कर रहे हैं, सपोज किसी पार्टी में बैठे हैं, बहुत अच्छी लैविश पार्टी में, बट वी आर एब्सेंट इन दैट मोमेंट. हम प्रेजेंट ही नहीं है उस मोमेंट में, और कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देयर इज गुड फूड, देयर आर गुड ड्रिंक्स,
बट अगर हम इंटरनली बर्नआउट वाले स्टेज में, इंटरनल एग्जॉशन वाले स्टेज में, वील फील एब्सेंट एट दैट मोमेंट कि ठीक है, देयर इज एवरीथिंग देयर, बट एक नथिंगनेस वाला स्टेट भी होता है. बट देयर इज अ गुड नथिंगनेस, देयर इज अ बैड नथिंगनेस. वो फिर वी कैन गो डीप इनटू दैट आल्सो. बट एक बैड नथिंगनेस वाले स्टेट में हम चले जाते हैं कि नो, अगर हिंदी में बात करते हैं, नीरस हो गया टाइप, नीरस हो गया जीवन, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. थिंग्स आर गोइंग ऑन बट हम एग्जॉस्टेड है अंदर से. वी आर लाइक कि सब कुछ मीनिंगलेस है, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट. हाँ, वो नथिंगनेस से ज्यादा, जैसे आपने बहुत क्लियरली बोला, वो मीनिंगलेस हो गया कि मतलब लाइफ ही मीनिंगलेस है. मैंने सब कुछ कर किया, मैं सबके लिए करती हूँ, बट देयर इज नोबडी हु टेक्स केयर ऑफ मी, या फिर पीपल डोंट गिव शो मी इनफ लव एंड यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड यहाँ पे इट्स लाइक भीड़ में भी आपको अकेला महसूस हो रहा है. बहुत सही. एग्जैक्टली दैट. तो आपने जैसे पार्टी का एग्जाम्पल दिया, वो वही है कि मतलब मैं पार्टी में भी जा रही हूँ और मैं सिनेमा हॉल में भी जा रही हूँ, जहाँ भीड़ है लेकिन मेरे खुद के लिए कोई नहीं है. इवन माई सेल्फ इज नॉट शोइंग अप. मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा है. एंड ऑन दैट वही बीइंग अलोन, एंड यू आर यू नो थिंकिंग दैट ओके आई एम बीइंग अलोन, और यू से दैट आई एम लोनली. आप फिजिकली अलोन, मतलब आप घर पे अकेले हो, बट आप घर में शायद सब लोग, फिर भी you're feeling lonely. That's mental exhaustion or physical, I mean emotional exhaustion for me. करेक्ट. वही सॉलिट्यूड और लोनलीनेस वाला डिफरेंस जो है बहुत बड़ा है. एंड आई थिंक अगर यू नो, इवन इफ समवन हु वांट्स अस टू एक्सप्लोर ऑन दैट टॉपिक, we'll definitely touch this upon another live. But if you want, you know, you can go to our last discussion which was on self care, because I think internal exhaustion का सबसे अच्छा solution is self care. Yes. अगर आपके पास कोई accountability नहीं है, you don't have any company, you don't have any good people who you can connect with, but you are there for yourself. आप खुद के लिए तो खुद हो ना. अगर आप अपने लिए अपना self care पे ध्यान दे रहे हो, then I think आप internal exhaustion से easily थोड़ा deal कर सकते हो उससे. What do you think? Definitely. And do drop in the comment box if you really want us to, you know, take that topic and elaborate it further. We would love to do that. But for now, let us get back to the physical burnout, which is happening. Yes, which is happening or being experienced by many people, because हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वो सब करते करते हम इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, कि हमें बाद में फील होता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे. और फिर वो फीलिंग की मुझे बहुत कुछ करना है और कुछ हो नहीं पा रहा है, एंड देन दैट लीड्स टू लाइक ओवरवेल्म हो जाते हो आप. राइट एब्सोल्युटली. ओके, सो go ahead. I was just elaborating on that कि I think it was the first live when we talked around time management, थोड़ा सा we touched upon that. तो अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज पता है, अगर आपको अपना ये पता है कि कौन सी किस टाइम पे हमको अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, दैट होल एनर्जी मैनेजमेंट डिस्कशन दैट वी हैड, तो अगर वो वाला पार्ट आपका थोड़ा सा क्लियर है, देन आई थिंक आप फिजिकल बर्नआउट को खत्म नहीं करोगे, बट एटलीस्ट आप उसको 50% रिड्यूस तो कर ही सकते हो. राइट. डेफिनेटली. एंड प्रायोरिटाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्रायोरिटी डजंट मीन दैट कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड प्रायोरिटी ऑल्सो डजंट मीन दैट यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग. आपके लिए वो चीज अगर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है तो आपको अभी ही करनी पड़ेगी. राइट. अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, आई गिव यू दैट एग्जांपल. सो वी हैव 2 cylinders at home. The other day one got over and I was in the meeting and I thought I'll book it. ये एक इम्पोर्टेंट काम है बट मैंने अभी तक किया नहीं, तो मेरे दिमाग में वो एक बग है कि आई हैव टू डू इट, बट आई नो इट्स इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट. इवन इफ आई डू इट अ वीक लेटर इट्स फाइन, but it's not like on the very same day I have to make sure I will do it. Right? So we have that priority list. Important and urgent है, just do it right away. Important है but urgent नहीं है, आप schedule कर लो. Right? बात के लिए schedule कर लो, आप तब कर लो. बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम reschedule करने के बाद हम delegate भी कर सकते हैं. Someone else can do it on your behalf. Exactly. Right. एंड ये वाली चीज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो आप. अगर आपको घर में पता चल रहा है कि ये वाला काम कोई आपका भाई बहन है, मम्मी पापा ने बोला काम वो ज्यादा बेटर करेंगे, उनको डेलीगेट कर दो. ऑफिस में लग रहा है कि आपके कोई टीममेट है जो अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, तो आप क्यों डिजाइन के एस्थेटिक्स में बिजी हो रहे हो, आप एक डिजाइनर को पकड़ा दो वाला काम, एंड यू कैरी ऑन विद द मेन प्लानिंग थिंग, और वाइस वर्सा, विच एवर योर थिंग इज. तो डेलीगेशन इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हमको समझना चाहिए कि कहाँ पर हमारी एनर्जी बच सकती है. लेट्स सेव इट. दैट्स द ओनली थिंग दैट. Yes. अगर आप अच्छे हो डेलीगेशन में, you will be a better manager at work and even at home. Exactly. Right.
बिकॉज मैनेजर का काम क्या होता है, वो सबको किसका कौन सा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसको आप काम पकड़ाओ. यू मेक श्योर इवेंचुअली दैट वर्क हैज टू बी डन. जो क्लाइंट को देना है वो अच्छे से हो जाए. एंड अगर घर में भी यू हैव टू पुट ऑन द शो, लाइक सम गेस्ट आर कमिंग ओवर, ऐसा नहीं कि आप ही घर साफ करो, आप ही खाना बनाओ, आप ही डेकोरेशन भी करो, राइट? यू कैन डेलीगेट पीपल एंड यू वॉच ओवर कि भाई सब कुछ हो रहा है कि नहीं. राइट राइट राइट. तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इट्स नॉट अबाउट, पर्सनली फॉर मी इट्स नॉट बैलेंस. बैलेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्मनी होनी चाहिए. हमें जो काम फाइनली डिलीवर करना है वो करने के लिए हम खुद को अपना टाइम लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम होने चाहिए. दैट इज हार्मनी. बैलेंस मतलब दिमाग में क्या आता है कि अच्छा इधर ऑरेंज है तो इधर भी ऑरेंज होना चाहिए, इट्स बैलेंस. या ये 2 kgs है तो दिस ऑल्सो शुड बी 2 kg, ओनली देन इट इज बैलेंस. While harmony is very different, ki wherever whatever is needed, just adequate, just right. You do that and move on. Absolutely, absolutely. And ये बहुत ही अच्छा टर्म था हार्मनी, बिकॉज काफी बार हम ना बैलेंस के उस एक ट्रेंड वर्ड में फंस जाते हैं कि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए लाइफ में. इतने घंटे काम करा, अब इतने घंटे नॉन प्रोडक्टिव चीजें, वो पूरा बैलेंस एक प्रॉपर ट्रेंड बन चुका है कि आपको उस बैलेंस पर रन करना है. काफी बार वो बैलेंस चेज करते करते लोगों को बर्नआउट हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है. हमको लगता है वी आर चेंजिंग बैलेंस, बट एक्चुअली वी गेट स्टक इन द बर्नआउट लूप. Yes, yes, certainly. So And harmony is very important. How do you manage? How do you make sure that you are in harmony? I mean, just personally, I'm asking. Right, right. So I told you a bit 2-3 years back. तो जॉब वाला वर्कआउट मुझे भी हो रहा था, एंड आई वाज फेसिंग दैट सेम थिंग. तो उसको मैंने कैसे सोचा कि उसको आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो और ये देखो कि कौन सा पार्ट है विच आई कैन ओन एंड आई कैन मैनेज. अगेन गोइंग टू बैक टू द मैनेजर एग्जांपल. तो उसमें देखा कि जो मेरी मॉर्निंग है दैट आई कैन कंट्रोल, जो मेरा छोटा सा नाइट रूटीन है दैट आई कैन कंट्रोल. एंड यू नो पीपल वोंट बिलीव कि अगर आप खाली अपने मॉर्निंग के 2 घंटे और रात के 1 या 2 घंटे मैनेज कर लेते हो, अच्छे से उनको ओन कर लेते हो, तो आपके दिन बहुत स्मूथ हो जाता है. यू नो एवरीथिंग इन द डे गेट्स स्मूथन आउट. So that's true. You know, what's your take on the morning routine, night routine? Before I share mine, what's your morning and night routine? Because I can't tell you how important it is. Because अगर आप रात में अच्छे से सो पाए तो आपका पूरा दिन अच्छा होगा, और अगर आप बर्नआउट फील करते रहे तो रात में आप मतलब, बिकॉज रात है आपको सोना है, ऑब्वियसली आप सोओगे, लेकिन सुबह उठ के वो इतना मतलब लैक ऑफ एनर्जी फील होगा, फटीग फील होगा, आपको लगेगा कि ठीक से सोए नहीं या नींद अच्छी नहीं आई, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोने से पहले का क्या रूटीन फॉलो करते हो, और उठते ही व्हाट आर द फ्यू फर्स्ट 15-20 मिनट्स आप कैसे मैनेज करते हो. तो फॉर मी इट इज सुपर इम्पोर्टेंट. नाइट रूटीन ना, काफी लोगों को लगता है नाइट रूटीन शुरू होता है जब हमने लैपटॉप स्विच ऑफ करा और हम बेड पे जा रहे हैं, बस वो वाला पार्ट नाइट रूटीन नहीं. अगर आप एक्चुअली इसको साइंटिफिकली देखो, आपका नाइट रूटीन शुरू हो जाता है आपके डिनर से. आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, वहां से आपका नाइट रूटीन शुरू. बिकॉज अगर आपने 10 बजे खाना खाया और आप 10:30 बजे बेड पे सोने चले गए, इट वोंट वर्क आउट. बिकॉज आपकी बॉडी तो पूरे टाइम डाइजेस्ट ही करती रह जाएगी खाना, आपको नींद कैसे आएगी इससे. तो आपका जो नाइट दैट शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम योर डिनर टाइम, है ना यार. ऐसे तो मेरी नाइट शुरू होती है, आई थिंक आई ईट माई डिनर एट सनसेट, सो 5:36 लाइक दैट आई ईट माय डिनर. And I go to bed around 10:30. So, मतलब by the time I go to bed, my digestion and all is over, and all I need is when I, close my eyes, then my system actually rest. And that is the way to go about. I have also started like अभी 3 ही मंथ हुए मुझे अप्लाई करते हुए, because I'm having dinner at sunset. बट आपको सोते हुए इतना लाइट फील होता है, यू फील कि हो गया जो डाइजेशन का काम था, जो हैवी टास्क था, दैट इज ऑल डन. अब बस सोना ही बचा है. पूरा सिस्टम, पूरा हार्मोन सिस्टम ऑलरेडी वो स्नूज वाले स्टेट में आ चुके हैं. अब उनको शट डाउन होना है थोड़ी देर के लिए. एंड अगर आप ध्यान से देखो तो, या जस्ट वन थिंग देयर, अगर आप ध्यान से देखो तो स्लीप आई थिंक डे का इकलौता काम है जो आप इतने लॉन्ग टाइम तक एक सिंगल टास्क कर रहे हो. अगर आप यूजुअली 6 से 8 आवर्स की स्लीप होती है हम लोग की, तो ऑफिस में भी आप 6 से 8 आवर्स तक लगातार ऑफिस वर्क नहीं करते हो. बीच में लंच करते हो, आप मीटिंग्स कर रहे हो, आप कॉल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट लगातार इतना बड़ा चंक ऑफ टाइम हमारा स्लीप को जा रहा है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका बर्नआउट से भी बहुत अच्छा रिलेशन है. हाउ वुड यू एक्सपैंड ऑन दैट? सी, फॉर मी sleep is, as you said, one of the most important task of the 24-hour cycle. And जब आप सोने जाते हो, it is not that, I mean, I relate it with an example of a car.
अगर आपकी कार आप चला रहे हो, दिन भर उसे यूज कर रहे हो या वेरी ऑफन यूज कर रहे हो, यू हैव टू गिव इट फॉर सर्विसिंग। आप साल भर कार नहीं यूज कर सकते एंड एक्सपेक्टेड टू गो ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स। आपको उसे सर्विस को देना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम। राइट सो द सेम वे योर बॉडी हैज इनफाइनाइट एनर्जी एंड पोटेंशियल है, लेकिन फाइनाइट एनर्जी है फॉर दैट 24 आवर्स, राइट? एब्सोल्युटली और वो 24 आवर्स में आपको 6 to 8 डिपेंडिंग ऑन हाउ स्टेबल यू आर स्पिरिचुअली, यू नीड टू हैव दैट अमाउंट ऑफ स्लीप विच इज योर रिचार्ज। आप आपका फोन कितना भी बेस्ट क्वालिटी का फोन हो, आप 2 दिन 3 दिन यूज करोगे, बट उसकी बैटरी में तो चार्ज भी तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपका स्लीप इतना इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी का वो रेस्टिंग फेज है। जब आप गाड़ी रेस्ट करेगी तभी ना सर्विस होगी, आप चलती गाड़ी सर्विस नहीं करा सकते। और सबको लगेगा कि अच्छा ठीक है हम सब सोने जाते हैं, व्हाट्स बिग डील अबाउट इट? बिग डील इज कि अगर आप सोने गए, आपके दिमाग में मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ ग्रज है या कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंड और मे बी समवन इज नॉट वेल, या किसी से कुछ अनबन हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, हम उस थॉट के साथ सोने जाते हैं। तो आप फिजिकली सो गए लेकिन दिमाग में तो वो बात सबकॉन्शियसली चली रही है। हाँ, फिर आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा भाई नींद ही नहीं पूरी हुई, नींद ठीक से आई ही नहीं। सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो व्हाट आर द थिंग्स पीपल कैन डू? आई नो फॉर नॉट फॉर एवरीवन इट इज पॉसिबल कि सब लोग सनसेट पे डिनर कर लें, ये बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, जिसमें से हम दोनों भी हैं, बट नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, राइट? तो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल कपल ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन बाय एनीबडी एंड एवरीबडी? व्हाट डू यू सजेस्ट? I think even if they can't do dinner at sunset, then try to have your dinner at least 2 hours before your bedtime. Because 8 बजे तक तो सब लोग घर आ सकते हैं और 10 बजे से पहले अगर आपकी आज के डेट में मैक्सिमम लोग नहीं सो रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो वो फिर सनसेट पे खाने वाले होंगे। तो आप डिनर से 2 घंटे पहले एटलीस्ट डिनर, सोने से 2 घंटे पहले आप डिनर कर लो, एंड बिफोर बेड टाइम just listen to some good music, read some good books if you can. Is my video audible to you? Yeah, am I audible? You are, but I think थोड़ा सा लैग है वीडियो में था for a minute. I think you're back now. अच्छा, cool. हाँ, तो these are the few things जो मैं personally practice करती हूँ कि suppose किसी दिन अगर म्यूजिक वाला मूड है तो I'll just tune into some classic Bollywood songs, 90s के songs लगा लिए, वो सॉन्ग सुनते सुनते सो गए, या फिर किसी दिन मेडिटेशन का मन है तो 5 मिनट का मेडिटेशन कर लिया सोने से पहले, या फिर कोई अच्छी बुक है विच आई एम रीडिंग तो उसके 3-4 पेजेस पढ़ लिए सोने से पहले। सम एक्टिविटी विच आप उसको सेल्फ केयर के कैटेगरी में डाल सकते हो। कोई एक्टिविटी जो आपको करने में मजा आ रहा है वो करो और फिर उसके बाद सो, ताकि आपके थॉट्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए और कोई हसल बसल ना रहे दिमाग में सोते हुए। दैट इज व्हाट आई फॉलो। व्हाट डू यू फॉलो? So I mean, for me, it is like I have done something which is not that I don't listen to music. I am not avid reader personally, and I do my meditation in the morning. So unfortunately, I'm not able to follow what you suggested. However, what I do is I have dedicated space for work and for sleep. तो मैं अपने बेडरूम में तभी जाती हूँ बस मुझे जब सोना हो। So with that, what happens is I have conditioned my brain कि अच्छा this is my work table. When I come here and sit, मेरा जिस दिन मूड नहीं भी है काम करने का फिर भी my brain says कि okay this is work station, let us start working. तो मैं अपने बेडरूम में तभी जाती हूँ बस I'm just about to fall asleep. मैं जाके बेड पे अपना फोन स्क्रॉल नहीं करते रहती और कुछ देखते नहीं रहती, कुछ नहीं. My bedroom is to sleep. So I go there, I switch off the light and I'm off. Within 5 minutes I fall asleep. That's great. This is very important, हैविंग सेपरेट स्पेसेस फॉर थिंग्स वो बहुत जरूरी है। अब जैसे बेड में जाते तो आपके माइंड में ऑलरेडी वायरिंग हो रखी है कि सोना ही है, आ जाके कुछ और काम करना ही नहीं है। यस, बट वो पता है ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बहुत कम लोग होंगे उन्हें जो मेरे जैसे कि जब आप बिस्तर पे गए और आप 5 ही मिनट में सो गए, राइट? देयर आर पीपल हु हैव डिफिकल्टी इवन स्लीपिंग, टू फॉल असलीप। पीपल टेक हाफ एन आवर टू मे बी 2-3 आवर्स और वो इधर उधर करवट बदलते बदलते पता नहीं रात को कब नींद आई। इट इज बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा होता है, राइट? एंड जो रात वाला स्क्रीन टाइम है विच मेनी पीपल से कि भाई स्क्रीन टाइम कम करो। इवन एज सिंपल एज कि आप जो फोन की ब्राइटनेस है, आप बहुत बिजी थे दिन भर, आपने नहीं चेक किया कि आपके मैसेजेस क्या आए, एंड ओनली दैट टाइम यू गेट कि भाई यू वांट टू रिलैक्स योर बॉडी एंड यू स्टिल वांट टू स्क्रॉल थ्रू।
इफ यू हैव टू डू दैट, ट्राई नॉट टू डू दैट इन बेड. अगर आपको वर्क स्टेशन पे नहीं करना है, आप अपने काउच पे लेटो या कोई भी और जगह घर में, बट डोंट गो टू द बेड. ट्राई टू स्टैब्लिश दैट बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाना है. आप सोफा पे लेट के स्क्रॉल थ्रू कर लो या कुछ भी करो, बट व्हेन यू गो टू बेड इट शुड बी योर डेडिकेटेड स्पेस टू स्लीप. एक्टिविटी क्लोज हो जाए आपका. राइट राइट राइट. एब्सोल्युटली. मेरा भी वही साइकिल है. इवन इफ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम रीडिंग बुक्स, आई डू इट ऑन माय सोफा एंड देन बेड पे आ गए. अब यहाँ पर एक्टिविटी खाली सोने की है. कोई ऐसा नहीं है टीवी देखते हुए सो रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके माइंड की वायरिंग सही हो जाएगी उससे. उसको पता है अभी सोने बैठना है और कोई काम नहीं आता. नहीं तो माइंड विल बी कंफ्यूज कि आप कौन सी एक्टिविटी, आप कौन सा पोस्ट आते हो जिससे कोई इमोशन ट्रिगर हो जाए, एंड देन यू गो इनटू दैट लूप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Another common, not common actually, but for some they might want to practice it कि अगर आप सोने से पहले you take bath, especially warm water bath, right? That is a bliss. So if you have a proper place where you can soak yourself in warm water and nicely absorb into that and cleanse your body, it's amazing. If not, at least shower bath और आप bucket और mug से नहा लो, कैसे भी, if you can take warm water bath, that also soothe and completely. And have one thought in mind. When I go to take bath, I experience that or be mindful that okay, this water is cleansing my body and inside out. मतलब मेरा जो भी दिन भर का negativity है वो it is going away or it is washing away. I have that thought and then I take bath. तो उसके बाद जब बाहर आओगे ना और then you go to bed, you will feel amazing for sure. Correct, correct. एक बहुत सेंस ऑफ काम और व्हाट डू यू कॉल इट कि एक बहुत क्लियर सोल हो जाता है उस समय अगर आप ये वाली एक्टिविटी करके सो रहे हो. इफ यू कैन एटलीस्ट स्लीप, हफ्ते में 3 बार आप गर्म पानी से नहा के सो जाओ, बहुत ज्यादा कामनेस और आप महसूस करोगे. द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इंप्रूविंग डे बाय डे. इवन ऑन द डेज व्हेन यू आर नॉट बाथिंग, देन आल्सो यू विल फील क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी जो आपने पिछली रात करी थी. Exactly. And also, ठीक है, आप जब ये सब फॉलो करोगे तो शायद आपको टाइम लगेगा और there are days when you can't take bath and all. It is fine. At least try to do one thing कि फोन लेके बिस्तर पे नहीं जाओ. And second thing is when you're just about to fall asleep, have this thought that जो भी दिन भर में हुआ, try to resolve that in your head. Maybe अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है जिससे वो unpleasantness हुई या वो बात हुई या अनबन हुई, have this thought कि I forgive that person. Because I don't want to carry it in my head and go to bed. And have a sense of gratitude. Absolutely. Right. So gratitude. मोबाइल फोन वाली एक्टिविटी आपको सुबह भी कंटिन्यू करनी चाहिए. Yes. You don't scroll on bed at night and you don't scroll on bed in the morning also. रात का आधा घंटा, सुबह उठने के बाद का आधा घंटा, there should be no screen time. Exactly. वो कहना इजी होता है लेकिन होता नहीं है. तो एक छोटी सी वो अलार्म क्लॉक आती है ना, that you can buy and see. You actually bought that to do this activity. 2 महीने पहले I actually bought that tiny alarm clock जिसमें आप ऐसे ऊपर से टैप करके बंद करते हो. It's not around, else I would have showed you. I'll show it to you some other time. I really bought that clock. वो और आज भी वो 200 रुपए की आती है. आप 200 रुपए की क्लॉक ले आओ, अलार्म हटाओ अपना, क्योंकि अलार्म बंद करा उसमें फोन में नेट ऑन होता है बाय डिफॉल्ट. वाईफाई है, कोई ना कोई नोटिफिकेशंस पड़े होते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट. तो वो हटाओ फोन, पुट दैट अलार्म क्लॉक ऑन दैट. पुराने जमाने का जो क्लॉक आता था. Now, people who are listening to us, they might be saying that why are they asking us to buy something or spend money? See, either you do that or have that much discipline कि मैं घड़ी छोड़ के कुछ नहीं देखूंगी, कि बस क्या टाइम हुआ वो देखने के बाद just turn it off or put the phone aside. बट वो मंकी माइंड वुड नॉट अलाउ यू. क्या नोटिफिकेशन है, क्या मेल आई, किसने क्या पोस्ट डाला, वो तब शुरू हो जाता है तुरंत ही. बिल्कुल. राइट. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर ग्रेटिट्यूड के साथ ही दिन खत्म कर रहे हो तो होल नाइट यू विल हैव द सेंस ऑफ कामनेस. बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ होता है टू बी ग्रेटफुल फॉर. एज सिंपल एज कि यू आर ब्रीदिंग फ्रेश एयर. आप ऑक्सीजन मतलब खरीद के नहीं लेनी पड़ रही. मेडिकली यू आर नॉट गिवन ऑक्सीजन. राइट. इवन एक साल पहले पीपल वर एक्चुअली डूइंग, ऑक्सीजन खरीद के लोग ले रहे थे. तो अगर आज की डेट में आपको ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ी, दैट इज अ थिंग. आप सिंपल से उसके लिए ग्रेटिट्यूड लेके सो जाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप सोने से पहले मतलब
जैसे आप सोए और दूसरे दिन का जो पहला घंटा होता है, जैसे आपने बोला, वो कैसे शुरू किया, उसमें अगर आप वो चीजें कर सको जो इम्पोर्टेंट है, दैट ऑब्वियसली मेक्स अ डिफरेंस। एंड वो सुबह की इमीडिएट एंजाइटी अवॉइड करने के लिए आप बिस्तर पे जाने से पहले टेक योर स्केड्यूल फॉर नेक्स्ट डे, कि भाई मेरी सुबह की अर्ली मॉर्निंग किस टाइम की मीटिंग है। ये नहीं कि आप सुबह आंख खुली और याद है, ओ माय गॉड आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ प्रेजेंटेशन, आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। उससे बेटर है कि कुछ करके सो, भले थोड़ा सा लेट जाओ बेड पे कि भाई मैं फिनिश कर लूं तब जाऊं, या तो टेल टू योर सेल्फ कि सुबह में आई गिव माई टाइम टू दैट मीटिंग और दैट थिंग, बट डोंट गिव दैट शॉक टू योर ब्रेन इन द मॉर्निंग, ओ माई गॉड आई हैड अ मीटिंग, राइट? जस्ट चेक योर, हैव अ क्विक लुक एट योर स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे। एब्सोल्युटली। अगर आप इफ यू आर अ प्लानर यू कैन प्लान योर नेक्स्ट डे इन एडवांस थोड़ा सा, कि कल के मेन 3 टास्क ये हैं जो अचीव करने। इफ यू कैन प्लान इट अ डे बिफोर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट अभी क्या, आई थिंक द लिसनर्स माइट बी अ बिट ओवरवेल्म्ड, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली। तो एक बार इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको रैप कर लेते हैं, है ना? व्हाट डू यू थिंक? है ना? यस, गो अहेड, यू वांट टू रैप अप? या ओके। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई एक्टिविटी है, आप बिल्कुल छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट करो। ऐसे नहीं अगर आप कल से सनसेट पर डिनर करने लग जाओ, कल से आप छोटी सी एक्टिविटी लो कि सोने से 15 मिनट पहले मैं फोन रख दूंगी साइड में, और उठने के 15 मिनट बाद तक फोन नहीं उठाना है। एक छोटी एक्टिविटी स्टार्ट करो, इसको 10 डेज आप करके देखो, यू विल फील ग्रेट। और उसके बाद इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद द वार्म बाथ एग्जांपल, आप 3 दिन वो करके देखो, है ना? ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स विद योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। एक छोटी छोटी एक्टिविटी, और फिर हैबिट स्टैकिंग वाले जो प्रिंसिपल हम हर बारी बोलते रहते हैं, तो वो अप्लाई करके देखो। एंड देन आई थिंक यू नो यू फील द सेंस कि अब वो बैलेंस से, वो सॉरी बर्नआउट से हार्मनी की तरफ आप बढ़ रहे हो, राइट? व्हाट डू यू थिंक? Absolutely. I mean, it's very well summarized. And I have also noticed that not everyone has the ability to delegate things, जो हम बात कर रहे थे। फिर क्या होता है कि हमसे कोई भी कहता है कि भाई ये काम कर दो, हम कहते हैं हाँ कर देंगे, अच्छा ये भी कर देना, हाँ हम कर देंगे। तो हम भूल जाते हैं कि हमें मना कैसे करना है। Correct, correct. We don't know how to set boundaries, even in work or at home, both the things. And यहाँ पर I like to share an example of mine. What happened कि in my job there was a time कि मेरे को 2-3 roles assign करे जा रहे थे, है ना? I said कि no, I have to say no इस situation में, and you know I just found that courage कि ठीक है, मैंने अपने मैनेजर को जाके बोल दिया कि ओके ये वाला काम मैं नहीं करूंगी। And you won't believe, he was very fine with that. He said, okay, ठीक है, we'll find another person to do that, and you just do these 2 things smoothly. तो उसके बाद you won't believe कि I saved 2 hours of my day for that whole month, like 2 hours every day. Total 60 hours मेरे पास न्यू बच गए ऑफिस वर्क से। तो your managers are also, you know, हम लोग को लगता है कि हमारे मैनेजर्स जो हैं they are just हमारे जान के पीछे पड़े, बट ऐसे नहीं है। They also want to get the work done in a smooth way. So if you find that courage to say no, to set boundaries, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस में हो, you can save a lot of burnout in that process. What do you think? Have you experienced that? Have you set boundaries and got something good out of it? I have. And बाउंड्री सेट करने का मतलब हमें लगता है कि ठीक है हम बस ऐसे डायरेक्टली किसी के मुंह पे मना कर देंगे, भाई हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाउंड्री सेट करने का मतलब मेरे लिए है कि यू वुड बी पोलाइट इनफ टू से दैट कि भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, राइट। और एट द सेम टाइम यू ऑल्सो, आई मीन देयर इज अ वे टू से, सी अगर आप मेरा मैनेजर हो, आप मुझे काम दो, आई नो कि आई शुडंट बी सेइंग नो टू माय मैनेजर, बट देयर इज अ वे कि आई हैव दीज मेनी थिंग्स ऑलरेडी इन माई प्लेट, इसमें इतना टाइम लगता है, अब आप बताओ इसमें कहाँ टाइम है जो मैं ये काम भी कर लूं। एग्जैक्टली, गिव देम वैलिड रीजन, उनको समझाओ अपनी सिचुएशन आराम से। ऐसे नहीं है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो कि हम नो का प्लेकार्ड लेकर आ गए, आई कैन डू दिस थिंग। ऐसे नहीं है, आप घर पे भी अगर कुछ बात है, ऑफिस में, जस्ट टॉक टू देम, हैव अ कन्वर्सेशन, उनको समझाओ कि आपके पार्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, इसको मना करना क्यों जरूरी है आपके लिए, राइट? हाँ, और मना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नहीं ही करोगे। यू माइट वांट टू जस्ट से नो बिकॉज आपका टाइमलाइन क्रंच है, आप बोलो कि भाई आई कैन टेक दिस अप, बट ये इस समय मिलेगा, मतलब आई बी एबल टू डिलीवर इट इन दिस टाइम, राइट? करेक्ट। और अगर इतना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो भाई आप किसी और को दे दो। एग्जैक्टली। हाँ, तो बाउंड्रीज और इम्पोर्टेंट है एंड हमें वो सेट करनी चाहिए। इवन
Emotionally also, when I say boundary, I think it's a good thing to recollect कि बहुत सारे लोग से हम सिर्फ इसलिए अटैच हैं because मतलब they inspire us, that is good. But अगर किसी को देख के आपको जब देखो तब envy हो and you get with full of rage and when you meet them, वो जब देखो तब बताते हैं भाई मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है और मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. बेसिकली अगर आप उनसे बात करो आपको लगेगा हे भगवान, they have just drained my energy, they suck my energy out. Try to say no to those people also. Correct. Yeah, this is again a very important topic ki how to remove toxicity from your life, and I think if we touch upon that, so this live would get really extended. But people who are watching, if you want us to talk on that, please drop in the comments because this is very important. और हमको नहीं पता होता है कौन से areas में toxicity है हमारे life में and how to remove that. So this is a topic very close to my heart. So I will not say much at that point, but yeah, you please continue. हाँ मतलब वो ठीक है. देखो आप पर्सनल लाइफ में कैसे, आपके आसपास कितने लोग हैं, आपके घर में कितने हैं, आप कैसे किससे डील करते हो, अगेन दैट्स अ वेरी वेरी पर्सनल एंड सब्जेक्टिव टू एवरीबॉडी. बट एटलीस्ट सोशल मीडिया की एंजाइटी तो दूर की जा सकती है ना. आपने पता नहीं कितने लोगों को फॉलो कर रखा है, आप सबकी नोटिफिकेशन देते हो. कोई कहीं घूमने जा रहा है, किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, कोई बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कोई वेकेशन पे चला गया. वो सब देख देख के यू फील लाइक अरे यार हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, हमारी लाइफ में तो कुछ हैपनिंग ही नहीं हो रहा है. अरे हम अभी क्या हो गया, हम एग्जॉशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, उसकी जरूरत नहीं है, बट वी आर अट्रैक्टिंग दैट प्रेशर ऑन आवरसेल्फ कि अच्छा वो वहां चले गया, वी हैव टू गो देयर. एग्जैक्टली. तो आप किसी उसको फॉलो करो जिसकी पोस्ट पढ़ के आपको अच्छा लगे, जिसकी बातें सुन के यू कुड कनेक्ट दैट पर्सन, और यू फील कि ये बंदा और ये बंदी कुछ सेंसिबल बात करती है विच हेल्प मी stay on track, or it inspires me in some other way. There is some dose of motivation instead of that person or that notification is draining your energy, right? तो audit yourself on weekly basis कि भाई मुझे इसमें से क्या क्या चीज देख के अच्छा लगता है और क्या क्या चीज देख के मुझको एंजाइटी होती है, and try to just unfollow them. Nobody would come and ask you कि आपने मुझे unfollow क्यों किया. No one bothers. सब अपने लाइफ में बिजी है. We have to start thinking कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, और being selfish in a good way is a really important thing, and you should start doing that. और बाउंड्री सेट करना फिर सेल्फिश होने में हम ये नहीं कह रहे हैं ना, यू जस्ट ब्रिंग अप स्पाइक्स और आप बहुत हार्श हो जाओ टुवर्ड्स द वर्ल्ड, सबको अनफॉलो कर दिया है कि नहीं. जस्ट थिंक सेंसिबली कि उसका लॉजिक क्या है, वो आपसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन फॉलो इट या अनफॉलो इट, है ना. इट कैन बी अ सोशल मीडिया पर्सन और पर्सोना you're following, it can be a habit you're following, it can be a person you're talking to in your daily life. तो हर चीज के पीछे we should think कि is it adding something to my life or not, is it adding something positive to my life or not. Yes. And about what are the practical things, as we talk a lot about morning routine and night routine, other than that, in between during the day also, if you're a light sleeper, you might want to practice power nap. क्या 15 to 20 minutes का quick nap ले लो. It would help you re-energize. Like I take 25 minutes nap. So if I feel very tired and I'm like, okay, बस बहुत हो गया, या मुझे बहुत important चीज करनी है and मुझे वो interest नहीं आ रहा है, I feel that okay, I need some more energy. I rather just quickly go to bed and sleep for sharp 25 minutes. और 25 minutes में जैसे अलार्म बजा, I'm up and I'm all energetic. So obviously it might not work for everybody. But if you are a light sleeper, you might want to practice power nap on weekends first to see कि आप उठ पा रहे हो कि नहीं, so that आपका काम हैम्पर नहीं हो. चलो मीटिंग मिस ना हो जाए बीच में. You shouldn't. But the term is power, no? It gives you power, definitely. आप उसको practice करके देखो, then only you can relate with what we are speaking. Yes. So power nap is something which I practice, and I know even Veda practices power nap, and for me it's real energizer. In fact, for today, I get up at 4 a.m. in the morning, as I think I told you guys last time. Yeah. So I was feeling a bit like, okay, I need to get into live, and I thought, okay, it's already 11:30 and I have live at 12. I took a power nap of 20 minutes, and after 20 minutes, I just got up, got ready, and I'm here. So power nap works for me. It works, right. And अगर आप पावर नैप का भी सपोज if you're not working out from home and अगर आपका बहुत hectic office schedule है, तो पावर नैप की जगह you can take small hydration breaks या small power walks around the office. 5 मिनट के लिए आपने 2 घंटे का काम करा, 2 hours of deep work, then go for 5 to 10 minutes of walking around the office. 10 minutes के लिए
go for hydration drink कि आप जाकर कुछ you're having a sip of water and then you're coming back. Go for power walking. What's wrong in that? Go for that. If that pleases you and if that suits your environment, go for that. But do something to take Yeah. And small on that chunks of note, breaks. when we are talking about these practical tips, there is something which I have observed that works really well. आप जब बैठ करके काम कर रहे हैं, especially when you're working from home for a long time, especially you're watching just a small screen, right? Whole day आप बैठ के काम कर रहे हो, तो छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो. अगर आप 2 or 3 minutes का ब्रेक ले रहे हो, बट उस ब्रेक में आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है. एज यू सेड, यू हाइड्रेट योर सेल्फ, यू मूव योर बॉडी. जा करके एटलीस्ट 1-2 मिनट मूव योर बॉडी. अगर घर में स्टेयर्स है तो ऊपर Stretching नहीं जाओ. Correct. Right. Correct. And you should also do breathing. You can do a lot of type of meditation there. अगर आप meditation करते हो तो आपको पता होगा, you can do that, couple of minutes breathing exercises. If not, there is something called box breathing, which is very, very effective. Yep. Right. So, box breathing is, like box has 4 sides. वैसे ही आप सोचो कि up to the count of 4 you inhale, then to the count of 4 you hold, then up to the count of 4 you exhale, and then you wait up to the count of 4 and another cycle. ऐसे करके 3 cycle भी आप लोगे ना, तो your lungs would be able to absorb a lot of oxygen, and eventually the more oxygen you inhale, the better your brain get, reset mode, because अभी ज़्यादा oxygen है, and then you get going again. It's just like कि दिन के बीच में अगर फोन की बैटरी डाउन हो गई, you just charging it on a dart charger, वो फटाफट से चार्ज अप हो जाएगा. Just that. Exactly. So I think we have touched upon a lot of topics. How about self-care? What we can do along with all these activities? We talked about prioritization. We talked about, instead of balance, we should be looking at harmonization. और जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है कि किसको कितना बजना चाहिए फॉर द परफेक्ट ट्यून, आप उतना ही करो कि किस काम को कितना समय देना चाहिए कि आपके सारे काम हो जाए. आप खुद से कर रहे हो या डेलीगेट कर रहे हो, irrespective of that, काम होना चाहिए, right? You can take short breaks, you can schedule आपके काम, और अगर बहुत सारा काम है तो chunk it down कि आज ये करना है. And once you have it in your timetable, in your calendar, you are more likely to obviously do it, right? You have to assess your sleep pattern. आपको कितना टाइम लगता है सोने में और कितना देर सोते हो आप, and उठने के बाद how effective your sleep is. और अगर वो effective नहीं है, then try to follow some of the things which we said, right? You can take warm water bath, you can resolve your issues mentally and forgive that other person and forgive yourself for taking that situation that way, and go to bed with gratitude. Get up with gratitude. Have separate spaces for work, for sleep, और खाने के लिए या फिर entertainment के लिए, और एक अच्छी सी alarm clock खरीदो. Learn to say no and try to set boundaries and follow people जिनसे आपको anxiety होती है, right? So along with that, there is one component. हाँ जी. Unfollow both in physical और digital world. Yes. Physical world में थोड़ा मुश्किल होता है यार. अब घर के बाजू में कोई रहता है और उससे आपको anxiety होती है, आप नहीं unfollow कर सकते. But try to not let that person impact you. How about self-care? Self-care में और क्या कर सकते हैं? Right. There is one particular thing which I started doing out a couple of months ago. It has worked like magic. कुछ नहीं, अगर आपके दिमाग में suppose times कि आपके दिमाग में पर्सनल लाइफ का भी इश्यूज हैं, फैमिली लाइफ के इश्यूज हैं, जॉब के इश्यूज हैं, बिजनेस के इश्यूज हैं, जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एंड अगर दिमाग में 10 चीजें थी ना, बिलीव मी, व्हेन यू राइट इट डाउन, वो 3 सेंटेंस में खत्म हो जाएंगी. बिकॉज माइंड में जब हम उसी बारे में सोचते रहते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ फस अराउंड दैट. बट व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आधी चीजें तो उस प्रोसेस में ही खत्म हो जाती है कि अच्छा ये तो बाद में देख लेंगे, ये इस महीने जरूरी नहीं है, कोई और चीज ओके ये भी अभी 2 महीने तक जरूरी नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दें. एंड व्हेन यू राइट इट डाउन यू फील अ लॉट कामर. तो डेली आप इसको, इफ यू कैन डू इट ऑन अ वीकली बेसिस, स्टार्ट जर्नलिंग ऑन अ वीकली बेसिस. इफ यू लाइक डू इट ऑन अ डेली बेसिस, टाइम नहीं डू इट ऑन अ मंथली बेसिस. आप क्या कर सकते हो, मंथली अपने आप को एक लेटर लिख रहे हो, मतलब जैसे खत नहीं होते थे पुराने जमाने में, आप मंथली अपने आप को एक खत लिख दो कि इस महीने का मैंने ये करा, इस चीज ने मुझे परेशान करा. कुछ भी, whatever you feel like writing, just start writing, start journaling. That also helps a lot in self-care. What do you say?
Absolutely. In fact, it's a very good idea. So what, on that note, I have already started something like that, although I don't do it very often, but Uh-huh. अभी मतलब मार्च मंथ चल रहा है तो हमने क्या किया, एक जार बनाया है. मी एंड माई डॉटर स्टार्टेड. हम उस जार में वो मंथ खत्म होने के बाद उस मंथ में क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो लिख के डाल रहे हैं. तो जब मंथ एंड Nice. होगा तब हम वो सारी चीज पढ़ेंगे निकाल निकाल के कि ये साल हमारा कैसा रहा. इंस्टेड ऑफ वर्चुअली रिकॉलिंग, वी विल रीड इट फिजिकली कि हमारा ये साल में ये मंथ में हुआ, ये मंथ में वो हुआ. सो इट Yes. विल बी अ लॉट ऑफ फन. सो वी आर डूइंग दैट. Great. That's a nice activity. I'll also give it a shot. That's a nice one. It's like again gratitude का दूसरा फॉर्म है, but this is an interesting form because बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं. तो this way हाँ we can remember. That is nice. हाँ. तो हमने ये फिजिकली चालू किया अभी इस साल से. आई थिंक दिसंबर 31 को हमारे पास बहुत कुछ होगा टू गो थ्रू एंड हैव ऑल द मेमोरीज ऑफ द होल ईयर. सो that's something we are doing. And on that note, what you are saying, I also feel that there is something else can be done. बहुत बार क्या होता है हमारे दिमाग में, मतलब we have thousands of thought, but on similar line. लाइक अगर फियर ऑफ फेलियर है तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा क्या होगा, या अगर ये चीज हुई तो इसके बाद क्या होगा, बेसिकली इन एंड अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इन दैट सिचुएशन मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, बट इनकेस अगर कुछ मुझे बहुत बॉदर करती है देन आई ट्राई टू रैशनल माई सेल्फ की सब लिख डालो जो जो हो रहा है दिमाग में. फिर जैसे लेट से जो मेरे कंट्रोल में है गिव 1 स्टार, जो मेरे कंट्रोल में नहीं आई गिव अ हैश. आप स्टार और हैश ऐसे ऐसे देते जाओगे ना, तो फिर जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो छोड़ दो, एंड जो कंट्रोल में है वो आप लिख लो. तो जो कंट्रोल में नहीं है, अपने आप को मैं ये बोलूं कि भाई मैं अगले 10 मिनट तक या आधे घंटे तक मैं यही सोचते रहूंगी, बट दिस विल बी द लास्ट 30 minutes which I'll spend on those useless unproductive thought which are bothering me. उसके बाद वो पेपर चला दो और just throw it in the universe or throw it in dustbin or toilet की Flush it out, burn it out, anything. getting rid of that negativity. उसके बाद वो piece of paper लो जिसमें वो लिखा है कि what all is in your control, then start assigning. अच्छा ये मेरे कंट्रोल में है, let me do it on monthly basis, या ये मैं अगले साल तक कर लूंगी, जो भी है. तब आपको ज्यादा सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होगा. Correct. और शायद क्लैरिटी भी ज्यादा आएगी कि अच्छा मुझे क्या बॉदर कर रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. और क्लैरिटी होगी देन ऑब्वियसली योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट देन. On a separate note, have you watched Jab We Met? आई हैव इनफैक्ट मुझसे जो भी मिला उस समय मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि ये तुम्हारी ही स्टोरी है, जाके देखो. फिर मैंने देखी. Okay. You remember that scene when Shahid asked Kareena to burn that photograph and flush it out? So when you told about that exercise, मुझे वही scene एकदम recreate हो गया. अच्छा, okay, this is coming. This is really applicable. Okay, we should try that. It is very helpful and it works also. I have done it to myself. I have suggested many of my clients and it really helps. Wonderful. Great. तो जब भी मैं तो मुझे याद है when that movie had come before, मतलब मैं जाके सिनेमा हॉल में देख सकूं, मुझे इतने फ्रेंड्स के फोन आए कि भाई वो देख लो तुम्हारी ही स्टोरी है, वो गीत मतलब तुम ही हो. मैंने कहा भाई ऐसा क्या है. Okay, great, nice. Okay, so since how long we have been talking? Okay, yeah, it's been over 40 minutes. Oh my God. I think it's let's wrap up because I know it's Sunday afternoon and people must be taking some time to rest. But thank you so much, Medha. It was a lot of fun as always talking to you, and looking forward to talk more and more on other topics. It was really wonderful having you and having that heart to heart conversation about topics which many of us do not talk a lot about, but still it is good to hear someone's perspective with whom we can relate to. So. Thanks a lot. It was like yeah. We would definitely try to have more lives, and thanks to each and everyone who have still stayed until now, and whoever have dropped in and gone. Thanks to each and every one of you, and have a happy Sunday. We will see you guys probably next week with Medha's live probably. Have a happy Sunday and take care, and in advance happy Holi to celebrate. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Take care.